Hello, dear students. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Computer Class First, chapter number 5, that is about working with paint. So, students, in this session today, we will learn about the very interesting feature or an application of our computer system, which you all enjoy a lot. That is Microsoft Paint. All right. We will learn that how to start this application, what are the components of Paint window, what are the tools in Paint, and how we can draw the basic shapes on the monitor with the help of this Microsoft Paint application. So first of all, see, a computer has a paint program that helps us to make colorful drawings. You can draw and color pictures on a computer using it. So let us begin by learning how to start paint. What they saying students कि कंप्यूटर में एक पेंट प्रोग्राम होता है जो हमें हेल्प करता है कलरफुल ड्राइंग्स बनाने में. राइट आप कंप्यूटर पर इस एप्लीकेशन का यूज करके बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ एंड कलर कर सकते हैं. राइट सो सबसे पहले हम लर्न करेंगे कैसे पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है. सो टू स्टार्ट द पेंट प्रोग्राम यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. दिस इज द स्टार्ट बटन. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. देन यू हैव टू सिलेक्ट द विंडोज एसेसरीज फोल्डर. फिर विंडोज एसेसरी फोल्डर को क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट वहाँ पे पेंट ऑप्शन अवेलेबल होगा ऑन विच यू हैव टू क्लिक. क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पेंट विंडो अपीयर होगी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. See, you can also open Paint by typing Paint in the search box next to the Start button, then click on the Paint button. See, Start button के next यहाँ पे ये search box होता है. आप simply यहाँ पे Paint type करके भी Paint application को open कर सकते हैं. Alright? See, this is the Paint window. And these are the different components of Paint window. इसे कहा जाता है title bar. Alright, this is on this title bar. This is ribbon. This is drawing area. This complete blank space is drawing area. And this the lower space is known as status bar. Now, tools in Paint. So students, Paint में there are various tools. हमारे Paint window में various tools होते हैं to draw and color. So अब हम इन different tools के बारे में learn करेंगे which are there in the Paint. Number 1, pencil tool. It looks like sticks. Alright, pencil tool कुछ इस तरीके से दिखता है and इसका यूज किया जाता है for free hand drawing. ओके, पेंट विंडो पे किसी भी फ्री हैंड ड्राइंग के लिए आप पेंसिल टूल का यूज करेंगे एंड पेंसिल टूल को यूज करने के लिए दे हैव गिवन यू सर्टेन स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द पेंसिल टूल एंड द टूल्स ग्रुप. ऊपर टूल्स ग्रुप में आपको पेंसिल टूल पे क्लिक करना है. देन आप जिस टाइप की लाइनिंग चाहते हैं जो पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे उसकी थिकनेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. कैसे? वहीं पे आपको साइज ऑप्शन मिलेगा. यू हैव टू क्लिक ऑन द साइज ऑप्शन and then you can select the thickness of the line as per your requirement. Secondly, आप अपने कलर के चॉइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अपनी चॉइस के कलर को भी सिलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है, होल्ड रखना है एंड ड्रैग करना है अपने माउस पॉइंटर को ऑन दिस ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ द एनीथिंग विच यू रिक्वायर्ड. ऑलराइट. Second, we have eraser tool, which is like this. So, eraser tool का यूज किया जाता है to erase any part of a picture. अपने पिक्चर के किसी भी पार्ट को रिमूव करने के लिए, इरेज करने के लिए eraser tool का यूज करेंगे. What are the steps for using this tool? Number 1, click on the eraser tool in the tools group. Tools group में ही again एक eraser tool होगा, आप उसको क्लिक करेंगे. Then आप साइज पे क्लिक करके eraser साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. And then again press and hold down the left mouse button. Left mouse button को press and hold रखना है and then उस area पे move करना है अपने pointer को which you want to erase. Alright. Next tool is fill with color tool which looks like this. So students, fill with color tool का use किया जाता है to fill color in your drawing. Alright.
एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कलर टूल या फिल विद कलर टूल के थ्रू केवल जो क्लोज शेप्स होती हैं उन्हीं के अंदर कलर फिल कर सकते हैं. Now what are the steps to use this tool? First of all, tools ग्रुप के अंदर fill with color tool पे हम क्लिक करेंगे. Alright? Then अपनी चॉइस के कलर को सिलेक्ट करेंगे from the colors group and then left click the mouse inside the area which you want to fill. फिर उस एरिया के अंदर जिसके बेबी आप वो कलर को फिल करना चाहते हैं उसके अंदर आपको लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस को and that picture will be filled with that particular color only which you have selected. नेक्स्ट इज ड्राइंग शेप्स. अब बात करते हैं कैसे हम डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेक्टेंगल टूल आल्सो. सो रेक्टेंगल टूल का यूज किया जाता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए. कैसे? सी नाउ वी हैव शेप्स ग्रुप. शेप्स ग्रुप प्रेजेंट होता है जहां से आपको रेक्टेंगल टूल को क्लिक करना है. देन अपनी चॉइस के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड देन अगेन आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है एंड अपने माउस को ड्रैग करना है टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव ओवल टूल. सी ओवल टूल का यूज किया जाता है टू ड्रॉ एन ओवल शेप और अ सर्कल. एक ओवल शेप या एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ओवल टूल का यूज करते हैं. What are the steps? First of all, click on the oval tool in the shapes group. Again, shapes group में जो oval tool है उस पर आपको क्लिक करना है. अपनी choice के कलर को select करना है from the colors group. And then again, same step, that is what? Press and hold down the left mouse button and drag the mouse to draw a oval like this. Next we have line tool. लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन टूल का यूज किया जाता है. फॉर दैट अगेन शेप्स ग्रुप में जो लाइन टूल है आपको उसको क्लिक करना है. कलर्स ग्रुप में से अपनी चॉइस के कलर को सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस एंड होल्ड डाउन. लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे एंड माउस को ड्रैग करेंगे टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. राइट, सी टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अब एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की है उसको भी प्रेस एंड होल्ड रख सकते हैं वाइल ड्रैगिंग द माउस. माउस को आप ड्रैग करते रहेंगे ड्राइंग एरिया पे एंड उसके साथ साथ शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड रखना है. लाइक दिस ऑल्सो वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. Then next we have what? Triangle tool. Triangle tool is used to draw a triangle. Triangle tool का यूज किया जाता है ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए. अगेन शेप्स ग्रुप में ट्राइंगल टूल को क्लिक करना है. अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड देन अगेन लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है एंड ड्राइंग एरिया पे माउस को ड्रैग करना है टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेविंग अ ड्राइंग. अब इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग्स को बना सकते हैं, उन्हें कलर कर सकते हैं एंड देन इफ यू वांट देन यू कैन सेव योर ड्राइंग आल्सो. ऑलराइट, it is very important to save your drawing after finishing the work so that you can open it for later use. और दे saying कि काफ़ी important है अपनी ड्राइंग को यानी कि अपना वर्क फिनिश करने के बाद अपनी ड्राइंग को सेव करना so that आप उसे बाद में अपने लेटर यूज़ के लिए ओपन कर सकें. So to save a drawing, अब ड्राइंग को सेव करने के लिए you have to follow these steps. First of all, click on the file tab. सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है. Then click on the save as option. सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पे सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड देन आपको फाइल नेम बॉक्स के अंदर अपना एज पर योर रिक्वायरमेंट आप फाइल का नेम टाइप करेंगे एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन. उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं अपनी फाइल को सेव करने के लिए सिंपली Ctrl+S कीज को भी कीबोर्ड से एक साथ ही प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग. अब हम बात करते हैं कैसे हम एक न्यू ड्राइंग को क्रिएट करेंगे. सो न्यू ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. अगेन फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वहां पे एक अगेन अ ब्लैंक ड्राइंग विल अपीयर ऑन विच यू कैन क्रिएट द न्यू ड्राइंग एज पर योर रिक्वायरमेंट.
Then again, they have given a shortcut that what? To create a new file, एक new file को create करने के लिए simply Control plus N keys को भी आप एक साथ ही press कर सकते हैं. Now, opening a saved drawing. अब हमने जो ड्राइंग सेव करी है, एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग को ओपन करने के लिए भी वी हैव सम स्टेप्स टू फॉलो. वेरी फर्स्ट इज क्लिक ऑन द फाइल टैब. ये फाइल टैब है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन. इसके बाद इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन सेलेक्ट द फाइल नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फाइल्स. इसके बाद वो पूरी लिस्ट जो है फाइल्स की जो हमने सेव करी है आज तक, वो सारी लिस्ट आपकी ओपन होगी. वहाँ पे आप अपनी डिजायर्ड फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन बटन पे क्लिक करेंगे. योर फाइल विल बी ओपन्ड. अगेन अ शॉर्टकट की, यानी कि एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड पे से कंट्रोल प्लस ओ कीज को भी टुगेदर प्रेस किया जा सकता है. नेक्स्ट इज एग्जिटिंग पेंट. सी, नाउ टू क्लोज अ पेंट प्रोग्राम. अब अपना वर्क फिनिश करने के बाद व्हेन यू वांट टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम, व्हेन यू वांट टू एग्जिट दिस प्रोग्राम, you have to follow these steps. What? Number 1, click on the file tab. Again file tab पे click करना है. Then click on the exit option. Then simply exit option पे click कर देना है. If your file is not saved, see very important, जब आप exit option पे click करोगे and अगर वहाँ पे आपकी फाइल saved नहीं है, so एक पेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है that whether you want to save the drawing or not, कि क्या आपको वो ड्राइंग सेव करनी है या नहीं. इफ यू वांट टू सेव चेंजेस, अगर आप अपने चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, देन आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे. एंड इफ नॉट, और अगर नहीं करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन डोंट सेव बटन. ओके, देन आपको डोंट सेव बटन पे क्लिक करना है. दैट इज एज पर योर चॉइस ओनली. लाइक दिस, इस तरीके से कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड. सो अगर आपको सेव करना है तो आप क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे. अगर आपको नहीं सेव करना है सो यू विल क्लिक ऑन डोंट सेव. ऑलराइट. Then again, to close a paint program, press the Alt plus F4 keys together. Same, अगर आपको एक शॉर्टकट की चाहिए पेंट प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए, तो सिंपली आपको कीबोर्ड पे से Alt plus F4 कीज को प्रेस करना है ऑल टुगेदर टू एग्जिट द पेंट प्रोग्राम. Done. So that's all for the chapter. This was that how we can use the paint program, and then what are the basic steps to use or to understand the functioning of this program. Let's meet in the next session. Till then, keep learning, take care of yourself, and thanks to everyone.